Morning student, welcome back in this class. I hope you are healthy and safe at your home. This is the class 9 subject social science, and today we will discuss about chapter number 2 of history, and the topic name is socialism in Europe and the Russian Revolution. This is the lecture 5th. Student, you know, firstly we will recall previous lecture, and student, you know, we got the idea of socialism from Russian Revolution. And after the French Revolution, we got the idea of change in society, and many groups were formed in Europe in 18th century, such as liberals, radicals, and conservative, and they wanted to change the society. And according to the socialists, they were against the private property system, and they formed different types of parties, such as Labour Party and such as Social Democratic Party. So student, in this chapter we will learn about the Russian Revolution, and two revolutions were very important in Russia, such as February Revolution and the October Revolution. So student, let's start, and firstly we will cover some topic today. First, we will discuss about the First World War and the Russian Empire. And you know student, the First World War had occurred on 1914 to 1919. And after that we will learn about the February Revolution. And you know, the main purpose of February Revolution was the fall of monarchy system from the country, and it was known as February Revolution. And after that we will discuss about some question. That question I have assigned in previous lecture, and last I will give some question in your homework. So student, let's start, and firstly we will discuss about the First World War. As student, you know, in 1905 revolution, all power in the hands of Tsar Nicholas, and you know Tsar Nicholas II was the king of Russia. And the First World War was started in 1914 between two European alliance, means two European groups. And first group included Germany, Austria, and Turkey, and they had the central power. And other group included France, Britain, Russia, and after that Italy and Romania were also included in First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा 1914 में स्टार्ट हुआ. 1905 से लेके 1914 तक का सारी जो कंट्रोल जार निकोलस के पास थी, क्योंकि उसने ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जिसमें रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव के थे. तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिसमें टू पार्टीज थी. एक पार्टी के अंदर थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, और दूसरी पार्टी में थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड इटली एंड रोमानिया. उसके बाद में बेटा initially the war was popular Russia and the people supported Tsar Nicholas II. स्टार्टिंग में सभी पर्सन जार निकोलस को सपोर्ट करते थे, लेकिन आफ्टर दैट जार निकोलस II विदाउट कंसल्टिंग ड्यूमा हैड बिकम द पार्ट ऑफ द वॉर. और बाद में क्या हुआ बेटा, जार निकोलस they had not consulting with the Duma. Duma, you know, the Russian parliament called Duma. और इसी वजह से ये क्या हो गए, वॉर का पार्ट, ये क्या हो गए, बिकम द पार्ट ऑफ द वॉर. और इसी वजह से ये क्या हो गए, वॉर का पार्ट बन गए, क्योंकि स्टार्टिंग में जार निकोलस ने एक ऐसी ड्यूमा बनाई थी जिसमें आपस में कंसल्ट किया जाएगा कि जो भी पॉलिसी या कोई भी हम नए रूल्स बनाएंगे. लेकिन आफ्टर दैट जार निकोलस रिफ्यूज एनी डिस्कशन विद ड्यूमा. इसी वजह से काफ़ी सारे लोग जार निकोलस के क्या हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे. वो नहीं चाहते थे कंट्री में जार निकोलस का रूल चले. एंटी जर्मन फीलिंग, यानी दोज पर्सन हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री एंड दे वर एंटी जर्मन फीलिंग स्ट्रॉन्ग. एंटी जर्मन जो थे, जर्मनी के जो अगेंस्ट थे, उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. और उन्होंने अपनी फीलिंग को दिखाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके नेम्ड उसको दोबारा लिख दिया पेट्रोग्राड, बिकॉज सेंट पीटर्स नेम वॉज जर्मन नेम. और वहाँ पे जर्मनी की जो वहाँ पे जो थी रूस की जो वाइफ थी, रूस के राजा की जो वाइफ थी, निकोलस II की जो वाइफ थी, उसका नाम था जेरिना एलेक्सेंडर.
और एंड शी वॉज जर्मन ओरिजिन, उसका जो जन्म हुआ था जर्मन में हुआ था, एक तो ये रीज़न हो गया। एंड जो उसके एडवाइज़र थे, जो वहाँ पे रशिया के जो वहाँ पे एडवाइज़र थे जर्मन में एक उनके एडवाइज़र थे रासपुतीन, और वो एक जर्मन मॉन्क थे, जर्मन के एक सन्यासी थे। उन्होंने जार निकोलस और उसकी वाइफ को बहुत बड़ी ज़्यादा क्या थी, उनको हेल्प की थी, उनको डिस्कशन किया था, उनको बहुत ज़्यादा कंसल्ट प्रोवाइड करते थे। लेकिन उनकी जो कंसल्टेशन थी, जो उनके थॉट थे, वो उनको क्या है सक्सेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जार निकोलस और उसकी वाइफ का जो रूल थे वो बिल्कुल क्या हो गया था, अनपॉपुलर हो गया था। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग, सारे जो पर्सन थे वो क्या है, जार निकोलस को कंट्री में से रिमूव करना चाहते थे। ओके इसी वजह से वहाँ पे जो एंटी जर्मन यानी जो जर्मन के अगेंस्ट थे, इसी वजह से उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम भी क्या कर दिया था, पेट्रोग्रेड रख दिया था, क्योंकि जो जार की जो वाइफ थी वो भी जर्मनी से लिंक रखती थी, जिसका जन्म वहाँ हुआ था। इसके अलावा वहाँ पे जर्मन के एक सन्यासी थे, और जो मॉन्क थे उन्होंने एक बार जेरिना की हेल्प की थी, उसके बेटे बीमार था, उसको क्या है उन्होंने मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की थी। तो जेरिना ने उसको अपने ही पैलेस में रख लिया था, और बाद में वो उनको सलाह देता था, उनके साथ डिस्कशन करता था, लेकिन उसकी जो कंसल्ट थी और वो जो उनके रूल्स वगैरह थे उनके साथ वो क्या मैच नहीं हो पाए, और उसकी जो भी वो पॉलिसी बनाते थे वो पॉपुलर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से जार निकोलस का जो रूल थे वो क्या हो गए थे, अनपॉपुलर हो गए थे, और काफ़ी सारे जो पर्सन है वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। नेक्स्ट है बेटा, द आर्मीज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर fought from two directions, eastern and western. And there was a difference between eastern and western army of the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो वो क्या वेस्ट वर्ल्ड के टू डायरेक्शन से वो लड़ाई कर रहे थे, एक ईस्टर्न साइड से और एक वेस्टर्न डायरेक्ट, एक आर्म्स, ठीक है, वेस्टर्न ऐसे, लेकिन दोनों के जो मेथड, जो दोनों के जो तरीके थे वो बिल्कुल क्या थे, अलग अलग थे। ईस्टर्न वाले का मेथड अलग था और वेस्टर्न वालों का अलग था, उन्होंने अलग अलग तरीके से क्या है कंट्रोल किया था। नेक्स्ट है बेटा, द वेस्टर्न आर्मी फोर्ट फ्रॉम ट्रेंचेस stretches along eastern France, whereas the eastern army fought battle by leaving large casualty. Casualties होती है लार्ज स्केल पे, जब बहुत सारे सोल्जर की डेथ हो जाती है, मारे जाते हैं, उसको बोलते हैं कैसुअल्टीज। जो वेस्टर्न आर्मी थी बेटा वो तो थे वहाँ पे खाइयाँ बनाई हुई थी या नालियों में रह के वो क्या करते, वहाँ पे एक पैलेस पे रह के ही, प्लेस पे रह के ही उनसे लड़ाई कर रहे थे दूसरी पार्टी से। ट्रेंचेस का मतलब होता है जहाँ पे नालीज बनाई जाती हैं या खाई बनाई जाती है, यानी एरिया बनाया जाता है, वहाँ पे रह के क्या कर रहे थे, वो फॉट कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे। इसके अलावा जो ईस्टर्न के टाइप के थे, जो ईस्टर्न फ्रांस पे जो आर्मी लड़ाई कर रही थी, उन्होंने काफ़ी सारा एरिया क्या करा था, कंट्रोल कर लिया था, काफ़ी एरिया में वो फैल गए थे, और इसी वजह से वहाँ पे क्या है, इस वाले फोर्ट में बहुत ज़्यादा क्या हुए, आर्मीज़ की क्या हो गई थी, वहाँ पे मारे गए थे, लार्ज लेवल पे क्या हो गए थे, लोगों मारे गए थे। कैसुअल्टी का मतलब लार्ज स्केल, पीपल वर किल्ड इन लार्ज स्केल, एंड रशिया सफर्ड शॉकिंग डिफीटेड अलॉन्ग विद हैवी कैसुअल्टी इन द वॉर। और रशिया को बहुत बड़ा शोक लगा था, वो इस लड़ाई में बहुत बुरी तरह हार गए थे, क्योंकि रशिया के बहुत सारे सोल्जर, बहुत सारे आर्मी मेंबर इस वाले वॉर में मारे गए थे। इसी वजह से रशिया के लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। Russian army lost badly in Germany and Austria between 1914 to 1916. रशियन आर्मी बुरी तरह हार गई थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, जब वो लड़ाई कर रही थी 1914 और 16 के बीच में, तो रशियन आर्मी बुरी तरह डिफीटेड हो गई थी। एंड द रशियन आर्मी जब वापस अपनी कंट्री क्या कर रही थी, यानी वहाँ से लड़ाई वाले मैदान से जब वापस अपनी कंट्री के साथ आ रही थी, अपनी कंट्री में एंट्री कर रही थी, तो आते हुए उन्होंने क्या कर दिया, द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड बिल्डिंग। आते आते उन्होंने क्रॉप्स और बिल्डिंग, वहाँ जिस एरिया में जो भी क्रॉप्स थी और जो भी बिल्डिंग थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके एनिमीज़ है वहाँ रह के, या तो क्रॉप्स के, या तो वहाँ पे क्या रहे, वहाँ पे रहें, या बिल्डिंग में वो अपना लाइफ सर्वाइव करें। इसी वजह से उन्होंने आसपास का जो भी एरिया था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसी वजह से जब क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, काफ़ी सारी एरिया क्या डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों के पास कोई घर नहीं था, कोई खाना नहीं था। इसी वजह से इट लेड ओवर 303 मिलियन रेफ्यूजी इन रशिया। 3 लाख से ज़्यादा पीपल क्या हो गए थे, रेफ्यूजी हो गए थे, बिकॉज दे हैड नो हाउस, दे हैड नो फूड। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे ज़्यादा जो बैड इम्पैक्ट हुआ था रशिया में हुआ था, क्योंकि रशिया की बहुत सारी आर्मी इसमें मारी गई थी।
एंड द वॉर आल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री। इस वॉर से केवल इकॉनमी के साथ साथ इंडस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। एंड द इकॉनमी वॉज बैडली हिट विद कट ऑफ सप्लाईज एंड ब्रेकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था क्योंकि एक तो सप्लाईज क्या हो गई थी, कट ऑफ हो गई सप्लाई, यानी रॉ मटेरियल आना बंद हो गया था क्योंकि जर्मनी ने बैटोलिक सी पे कंट्रोल कर लिया था और जो भी जहाँ से भी रॉ मटेरियल आता था उस पे सभी पार्ट्स पे जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया था। इसी वजह से रूस में किसी भी तरह का अगर रॉ मटेरियल आता नहीं था, जब रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं होता तो वो प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते। इसी वजह से जो इक्विपमेंट थे, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे, वो भी क्या हो गए थे, टूटने लग गए थे और इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। एंड बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन, और रेलवे लाइंस भी टूटने लगी थी 1916 में, जिसकी वजह से बिज़नेस करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, इंडस्ट्री को भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसी वजह से इकॉनमी और सोशली बहुत ज़्यादा बैक इम्पैक्ट हुए थे रूस पे। नेक्स्ट है बेटा, एबल बॉडी मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर एंड दिस लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ लेबर and shut down of small workshop. Able body means strong person, strong bodies person were called to the war. जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सन थे उनको क्या है, वॉर में उनको भर लिया जाता था, उनको बुलाया जाता था क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन की रिक्वायरमेंट किस में होती है, आर्मी में होती है, और उनको फोर्सफुली वहाँ भेज दिया जाता था। इसी वजह से कंट्री में क्या है, एबल्ड मैन की सप्लाई क्या होगी, काफ़ी कम होगी, शॉर्टेज ऑफ लेबर की शॉर्टेज होगी। इसी वजह से जो स्मॉल वर्कशॉप है वो भी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, वर्कशॉप बंद होगी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, और जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था। एंड लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी, और काफ़ी बड़े लेवल पे काफ़ी जो ग्रेन था वो की सप्लाई आर्मीज़ को सप्लाई की जाती थी क्योंकि आर्मीज़ को फूड प्रोवाइड किया जाता था। इसी वजह से कंट्री में क्या है, दिस लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ ब्रेड एंड फ्लोर फॉर द पीपल इन सिटी। इसी वजह से सिटी में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फूड की क्या होगी, स्कैरसिटी हो गई थी, जिसकी वजह से रूस में जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बैड हो गई थी। और उसके बाद में जो जार निकोलस था वो भी कंट्री में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा था, उसकी जो पॉलिसी थी वो फेवरेबल नहीं थी। इसलिए जो फ्रेंच में रशियन रेवोल्यूशन का मेन मोटिव था जार निकोलस को हटाना। अब देखिए बेटा, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड हिज फर्स्ट नेम वॉज पीटर्सबर्ग बट हिज नेम चेंज वॉज Petrograd. In February 1917, there was acute shortage of food in Russia, which made the life of worker very difficult. आपको पता है कि फरवरी 1917 में क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एबल पर्सन थे वो आर्मी में जा रहे थे और फूड की सप्लाई सारी आर्मीज़ के लिए हो रही थी, इसी वजह से वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड एंड द लाइफ ऑफ वर्कर्स वर वेरी डिफ़िकल्ट। पार्लियामेंट्री अपोज द जार डिज़ायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा, और पार्लियामेंट्री जो थे वो नहीं चाहते थे कि जार क्या है, ड्यूमा को डिसॉल्व करे, और जार ने क्या कर दिया था, ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया, ड्यूमा को बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया था। इसी के अगेंस्ट, इसी वजह से जो पार्लियामेंट्री लीडर थे वो जार के अगेंस्ट हो गए, इसलिए वो जार को कंट्री में से रिमूव करना चाहते थे, मोनार्की सिस्टम को हटाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट सिस्टम यानी ड्यूमा को रिमूव कर दिया जाए। वो चाहते थे कि कंट्री में जो भी रूल्स बने हुए हैं वो ड्यूमा के अकॉर्डिंग करे, यानी रूल एंड रेगुलेशन was fixed by Duma, but Tsar Nicholas opposed the Duma. They dissolved the Duma. इसी वजह से ज़्यादा जो पर्सन थे वो जार निकोलस के अगेंस्ट हो गए थे। On 20th February, a lockout took place at a factory. लॉकआउट होता है जब इंडस्ट्री पे क्या लगाया था, लॉक लगाया जाता है, जब उसको फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है तो उस सिस्टम को कहा जाता है लॉकआउट। काफ़ी जगह एरिया पे क्या लॉकआउट किए गए, तो उसमें काफ़ी उनको लॉकआउट को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, और काफ़ी सारे स्ट्राइक और रैलीज़ को वुमेंस भी क्या कर रही थी, लीड कर रही थी। इसी वजह से दिस लेड टू प्रोटेस्ट, आंदोलनकारी और जो स्ट्राइक जो कर रहे थे, द फैक्ट्री ज्वाइंड बाय वुमेन, काफ़ी सारे वुमेंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड दिस डे 22 फरवरी को जब स्ट्राइक बड़े लेवल पे हुई थी तो उसको पार्टिसिपेट वुमेंस भी कर रही थी, इसीलिए 22 फेब को हम इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में ही क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल रूप में। जैसे हम अपने इंडिया में हम 8 मार्च को वुमेंस डे में सेलिब्रेट करते हैं, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे यानी फॉरेन कंट्रीज़ में 22 फेब को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी विमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था।
demonstrating worker crossed from the factory quarter to the center of the capital Nevsky Prospect. At this stage, no political party was actively. उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेट यानी आंदोलनकारी, यानी कि जो पर्सन रैलीज कर रहे थे उन्होंने क्या कर दिया, फैक्ट्री क्वार्टर को क्रॉस करते हुए दे क्रॉस द फैक्ट्री, दे क्रॉस द डिफरेंट वर्कशॉप एंड दे रिच सेंटर ऑफ द कैपिटल, और जो पेट्रोग्राड के बिल्कुल सेंटर जहाँ सिटी थी नवास्की वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ पे जाके पुलिस वालों ने और अलग उन्होंने उन पे क्या कर दिया था, अटैक भी कर दिया था। लेकिन एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइज दिस मूवमेंट, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, यानी कोई भी उनको लीड नहीं कर रही थी। केवल लेबर ही अपने अकॉर्डिंग, वर्कर ही अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, अपनी डिमांड को रख रहे थे। वो चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम को हटा दिया जाए, उनकी डिमांड थी कि स्ट्राइक को बंद कर दिया जाए, उनको फैक्ट्रीज़ को स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन उनकी डिमांड को फुलफ़िल ना होने की वजह से उन्होंने क्या है, रैलीज़ निकाली, और इसी वजह से वो क्या है, काफ़ी एरिया में क्या वो फैल गए थे। नेक्स्ट है बेटा, कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, और बाद में गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर चीज़ पे बैन लगा दिया, तो कोई भी पर्सन क्या है, फ्रीली घूम नहीं सकता। और उनको डेमोन्स्ट्रेटेड आंदोलनकारियों को कंट्रोल करने के लिए कैवेलरी यानी पुलिस को भी क्या कर दिया, पुलिस को बुलाया गया। कैवेलरी क्या होता है, घुड़सवार, यानी जो सेना किस पे आती, घोड़ों पे आती है, घुड़सवार जो होते हैं उनको बुलाया गया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया। एंड ऑन 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा, पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट दिस मेजर। और बाद में गवर्नमेंट ने गुस्से में आके गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, उन्होंने 25 फरवरी को डूमा यानी जो पार्लियामेंट्री रशिया की जो पार्लियामेंट थी उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया। इसी वजह से बहुत सारे पॉलिटिशियन बोलने लगे कि जो डूमा को रिजॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या है, डूमा को क्या मानते थे, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मानते थे। इसी वजह से एक जो रेवोल्यूशन वो बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हो गया था। एंड नेक्स्ट बेटा, ऑन 26 फरवरी डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न ऑन द स्ट्रीट वेयर ऑज ऑन 26 फैब को डेमोन्स्ट्रेटर यानी आंदोलनकारी सड़कों पे उतर गए और 20 कर गए, और उन्होंने क्या करें, आपस में डिस्कशन किया। और 27 फैब द पुलिस हेडक्वार्टर वर अटैक्ड एंड डैमेज, और बाद में उन्होंने डिस्कशन करने के बाद बहुत बड़े लेवल पे 27 फरवरी को काफ़ी सारे वर्कर्स ने मिलके पुलिस पे हेडक्वार्टर पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, और काफ़ी बड़े लेवल पे पुलिस हेडक्वार्टर्स को डैमेज कर दिया। एंड वर्कर डेमोन्स्ट्रेट ऑन द स्ट्रीट रेजिंग स्लोगन अबाउट ब्रेड वेजेस बेटर ऑर्स एंड डेमोक्रेसी। एंड वर्कर डेमोन्स्ट्रेटेड, वर्कर्स ने भी आंदोलन स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेट, दे वर अगेंस्ट द जार निकोलस, दे वर अगेंस्ट द पुलिस सिस्टम। और इसी वजह से उन्होंने नए नए स्लोगन बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी कंडीशन थी बहुत ज़्यादा पुअर थी। एंड उन्होंने स्लोगन लिखे गए कि ब्रेड की जो प्राइस ऑफ ब्रेड क्या होनी चाहिए, कम होने चाहिए, बेसिस इंक्रीज़ होने चाहिए, वर्किंग आवर्स बेटर होने चाहिए, वर्किंग कंडीशन बेटर, एंड दे डिमांडेड फॉर डेमोक्रेसी। और उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड रखी, इसे वो चाहते थे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बने। इसी वजह से उन्होंने रैलीज बनाना, स्लोगन करना स्टार्ट कर दिया। आगे बेटा, द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन थ्रू कैवेलरी बट इट रिफ्यूज टू फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने घुड़सवार बुलाए, उनको कहा कि क्या कर दिया कि अगर कोई, बट इट रिफ्यूज, कि आप इन पे क्या कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, आप इनको क्या गोली भी मार सकते हो। लेकिन जो कैवेलरी थे वो क्या थे, सॉफ्ट हार्टेड थे। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर पे हमला करना यानी फायर करने से बिल्कुल मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी वर्कर या किसी पीजेंट्स को बेफालतू मारा जाए। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ रेजिमेंट, और गुस्से में आके जो कैवेलरी थे यानी जो पुलिस ऑफिसर जो थे, जो कैवेलरी थे यानी घुड़सवार जो थे, घुड़ सैनिक जो थे, उन्होंने गुस्से में आके अपने ही ऑफिसर को क्या कर दी थी, गोली मार दी थी। रेजिमेंट थे यानी अलग अलग ग्रुप थे, रेजिमेंट थे, आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं। 3 अदर रेजिमेंट रिवोल्टेड एंड उन्होंने भी क्या कर दिया, आंदोलन करना, दे
दे वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दे वॉन्टेड टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर, और उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक वर्कर के साथ मिलना स्टार्ट कर दिया। वो भी चाहते थे कि कंट्री में जो वर्कर की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, इसीलिए उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर पर फायर करने से बिल्कुल मना कर दिया। वो भी चाहते थे कि वर्कर्स की जो डिमांड है वो क्या है, नेसेसरी है, और कंट्री में से मोनार्की सिस्टम को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, द cavalry soldier joined the workers and jointly formed a Soviet or council in the same building where the Duma met. And the cavalry soldier they were joined with the workers and joined formed a Soviet. बाद में जो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे, जो घुड़सवार थे, उन्होंने वर्कर के साथ मिलके एक ग्रुप बनाया, एक सोवियत बनाया, एक काउंसिल बनाया, जिसमें उन्होंने डिस्कशन किया। और वो जो उन्होंने मीटिंग हेल्ड की थी वो उसी बिल्डिंग में की जहाँ पे डूमा यानी कि जो रशिया की पार्लियामेंट फॉर्म की जाती थी, वहीं पे उन्होंने काउंसिल बनाई जिसका नाम रखा गया पेट्रोग्राड सोवियत, क्योंकि ये जो सोवियत बनाई गई थी पेट्रोग्राड में बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया पेट्रोग्राड सोवियत। On 28th February, a delegation went to see. Means some people belong to higher post and some leader. डेलीगेशन वेंट टू सी द जार, काफ़ी सारे लीडर्स मिलके क्या गए, जार के पास गए और उन्होंने जार को क्या की, कंसल्ट किया, उसके साथ डिस्कशन किया कि जार रिज़ाइन द, और डिस्कशन किया, उन्होंने उनको सलाह दी, दे कंसल्ट विद द जार, और जार को सलाह दी कि आपको क्या अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अब क्या है आपकी पावर को क्या किया जा रहा है, कम होती जा रही है, लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो लोग आपको हमला करें उससे पहले आप क्या कर दो, रिज़ाइन कर दो। एंड द जार रिज़ाइन द थ्रोन ऑन द एडवाइस ऑफ मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री कमांडर की सलाह होने पर जार ने क्या कर दिया, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। और इस प्रकार 2 मार्च 1917 को क्या हो गया था, जार निकोलस ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। एंड सोवियत लीडर एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्स ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। बाद में सोवियत लीडर ने अपनी कंट्री को, रशिया कंट्री को प्रॉपरली चलाने के लिए दे फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो अंतरिम गवर्नमेंट है, यानी कि जो कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट जो फॉर्म की जाती है, जब एट ए टाइम कोई गवर्नमेंट क्या हो जाती है, रिमूव कर दी जाती है, तो एट ए टाइम जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है उसको है प्रोविजनल गवर्नमेंट कहा जाता है, ताकि कंट्री को क्या है स्मूथली रन किया जाए। एंड ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म की गई ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन रशिया, जो किस पे बेस्ड थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में थी। एंड पेट्रोग्राड हैड लीड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रोट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। तो इस प्रकार पेट्रोग्राड में क्या हुई, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑकर्ड हुई, और जिन्होंने क्या है मोनार्की सिस्टम को बिल्कुल कंट्री में से रिमूव कर दिया था। तो इट वाज द रेवोल्यूशन ऑफ फेब्रुअरी 1917 एंड द मेन पर्पस ऑफ फेब्रुअरी 19 इट वाज द फॉल ऑफ द मोनार्की सिस्टम फ्रॉम द कंट्री। एंड जार निकोलस दे रिजाइन देयर पोस्ट। ओके, सो तो इस प्रकार जो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो था 1914 से लेकर 1919 तक चला था, लेकिन 1917 में क्या हो गया था, जार निकोलस ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि वो उसकी जो उसके काफ़ी सारे अगेंस्ट थे, अगर वो उसको पावर से नहीं देते तो लोग उस पर हमला कर देते, या उसको अपनी क्या है उनको क्या है फोर्सफुली उसको पावर से बिल्कुल क्या हो जाता था, रिमूव करना पड़ रहा था। तो इसी वजह से उससे पहले कमांडर के कहने पर उसने क्या कर दिया, अपने ही पावर से रिज़ाइन दे दिया। तो इट वॉज द इंसिडेंट ऑफ फरवरी 1917. Today your homework solution beta. First, which incident was the immediate cause of 1905 revolution in Russia? What were the consequences? Consequence means what were the results? Bloody Sunday was the immediate cause of 1905 revolution in Russia. And incident was firstly on a Sunday of the year 1905. The procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace of the Tsar in order to present a petition. In this incident, more than 100 people, 100 workers were killed and about 300 were wounded. And this came to be known
as Bloody Sunday. Consequence started a series of events that become known as 1905 Revolution. Consequences: the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. The Tsar changed the voting laws. And third, most of the trade unions and committees were declared illegal. Question number second. What was a Duma? And you know, Duma was a Russian parliament, and Duma was a parliament of elected consultative formed with the permissions of Tsar after the success of 1905 Russian Revolution. Question number third. When did the First World War break out? And answer, you know, in 1914. Question number 4. Distinction between socialism and capitalism. Socialism. Under socialism, the means of production are controlled by the society or by the government. Second, social welfare is the main motive of the socialist, and this system is against any private property. Capitalism. Under capitalism, the means of production are controlled by the private individual. To earn maximum profit is the main motive of the capitalist society, and this system is in the favor of the private property. Question number 5. A communist society was the natural society of the future. And answer is, this line was said by Karl Marx, and Karl Marx was of the opinion that an industrial society was a capitalist society, and capitalists earn profit because of workers. To increase his profit, the capitalist uses two methods, such as either by reducing work wages or increasing the working hours. And Marx believed that to free themselves from the capitalist, worker had to be construct a radically socialist society where all the properties were socially controlled. Question number 6. Name the countries that formed Allied power in the World War I. Answer is France, Britain, Russia, and later Italy and Romania to join them. And question number 7. How did the revolutionaries originate in the year 1815? Answer is, in France, Italy, Germany, Russia, some nationalists, liberals, and radicals become revolutionaries, and they worked to overthrow existing monarchy. Okay, student, and all question done in your fair notebook. And student, today your homework. Do following question. First question. Which countries formed Central Power Bloc during World War I? And question second. What was the Petrograd Soviet? And question third. How was the First World War on the Eastern Front differed from then on the Western Front? Explain it. Differentiate between the ideas of the Bolsheviks and the Mensheviks. Question 5. The First World War is considered one of the major factors responsible for the Russian Revolution of 1917. Explain it. Question number 6. What was the result of February Revolution of 1917 in Russia? And question student, all question done in your fair notebook. Okay, thank you.